Hello, my dear friends. Before starting the properties and uses of ammonia, let us discuss one competitive question, and that is why cyanide minus is known but Cp minus is not known. So, first is carbon and nitrogen. Both are small because they are the first element in their group. P pi bond possible between carbon and nitrogen. For example, when carbon combine with a nitrogen, they form a 2p pi bond due to why d pi and p pi or p pi d pi bond not possible due to absence of d orbital, क्योंकि उसमें d orbital नहीं है. Nitrogen is more electronegative with respect to phosphorus, or between carbon and phosphorus p pi bond not possible. Why? Because in p d orbital is available but p orbital is not available. बाद में लास्ट में ये फिफ्थ पॉइंट आप लिख लीजिए. Therefore Cn माइनस इज नॉन बट Cp माइनस नॉट नॉन. ये दोनों एक सिमिलर साइज के, ठीक है, दोनों फर्स्ट एलिमेंट ऑफ देयर ग्रुप, तो दोनों के बीच में p pi बॉन्ड पॉसिबल है क्योंकि दोनों के पास p ऑर्बिटल ही है, d ऑर्बिटल नहीं है. नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो पाई बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है. ये कोई भी चीज़ फॉस्फरस में नहीं है, फॉस्फरस जो है उसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो पी पाई बॉन्ड पॉसिबल नहीं है. तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड फॉस्फरस. बहुत ईजी रीज़न है. और अगर आप एक ही सेंटेंस में बोलना चाहे तो कार्बन नाइट्रोजन में पी पाई पॉसिबल है तो Cn माइनस पॉसिबल है शॉर्ट में. इसमें p पाई पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, तो Cp माइनस नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल है शॉर्ट में अगर बोलना चाहे तो. During the discussion of preparation of ammonia by Haber process, I told you that I will explain you the flow chart, or you can say schematic diagram of the preparation of ammonia. So let us discuss the flow chart of preparation of ammonia. So see, there is a flow chart on your screen. So during the preparation of ammonia, hydrogen and nitrogen both are introduced to compressor, and in compressor 20 megapascal pressure is maintained. 20 megapascal means 20 multiplied by 10 raised to 6 pascal. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 200 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू 5 पास्कल. इसका मतलब ये हुआ कि 200 बार प्रेशर, बिकॉज 10 रेज़ टू 5 पास्कल इज इक्वल टू 1 बार. तो मैंने ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया आई ऑलरेडी टोल्ड यू 20 मेगा पास्कल मीन्स 200 बार. बाय दैट प्रेशर दैट नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन into 3:1 proportion, 3 टाइम नाइट्रोजन 1 टाइम हाइड्रोजन. जितना नाइट्रोजन लेते हो उससे 3 गुना हाइड्रोजन सप्लाई करना है. उसको हम कैटालिटिक चैम्बर में भेजेंगे, इसको शॉर्ट में बोलेंगे सीसी. कैटालिटिक चैम्बर में कैटालिस्ट है आयन ऑक्साइड और प्रमोटर है आइदर एल्यूमिनियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड. कैटालिटिक चैम्बर का टेम्परेचर है 700 केल्विन टेम्परेचर. यहाँ पे एक प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस है नाइट्रोजन, ये प्लस नहीं है, यहाँ पे एरो लगाना है. नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 moles ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 moles ऑफ ammonia is formed. This ammonia is carried by pipe and cooling pipe is collected here in a liquid form, ammonia liquid. And as we know that in chemistry no reaction takes place 100% by any method, then this unreacted
यहाँ पे जो अनरिएक्टेड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, दिस इज द अनरिएक्टेड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दैट इज collected in a pump and once again supplied to catalytic chamber. And in catalytic chamber, once again they react and converted into ammonia. Okay, so this is the flow chart. See here, nitrogen and hydrogen supplied from cylinder. Pressure is maintained here, is supplied to catalytic chamber. Temperature maintained. Ammonia produced is collected in a liquid form because this curved pipe is cooling pipe. Here gas is cooled and it is converted into liquid, and unreacted nitrogen and hydrogen is supplied to catalytic chamber once again with the help of pump. Okay, this is the flow chart, not necessary to draw in exam. This is only for your understanding. If you want to draw, then draw with this single line like this. Okay, single line. Now let us discuss the physical and chemical properties of ammonia. Write down question: the physical and chemical properties of ammonia. तो फिजिकल प्रॉपर्टी में पहले हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर. द स्ट्रक्चर ऑफ एमोनिया इज अ ट्राइगोनल बाई पिरामिडल. नाइट्रोजन इज एट एपेक्स, मीन्स यहाँ टोच के ऊपर नाइट्रोजन है. ये ट्राइगोनल पिरामिडल शेप है, इसकी टोच के ऊपर नाइट्रोजन, उसको बोलते हैं एपेक्स. तो इसके अंदर 3 बॉन्डिंग पेयर एंड 1 लोन पेयर, मतलब कि 3bp 1lp प्रेजेंट इन एमोनिया. तो ये स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करके यहाँ नोट कर लेना कि एमोनिया में नाइट्रोजन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप है. नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ दैट इज द 101.7 picometer. Nitrogen hydrogen bond angle is 107.8 degree. Type of molecule is AB3E. A is nitrogen, B3 means 3 hydrogen, and 1 lone pair is present, is represented by E. This denotation was there in 11th standard. इसका मतलब क्या हुआ कि 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर प्रेजेंट. इतना नोट कर लेना साइड में. शेप तो ऊपर लिखा हुआ ही है. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये पूरा पॉइंट जो जैसे मैं बोलता हूं ऐसा आपको लिखना है. पहले आप लिखेंगे कि कलरलेस. एमोनिया का कोई कलर नहीं होता है. पंजेंट ऑर्डर, जैसे आप स्मेल लेते हो तो गले में और नाक में जलने की सेंसेशन होती है, जलन होती है. फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो. फिगर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. एंड एमोनिया कंटेन हाइड्रोजन बॉन्ड. एमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, क्योंकि कभी कभी जो है वो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड. अगर ये आप समझना चाहे सब लिखा है, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन इन अ लिक्विड और सॉलिड स्टेट उसके अंदर इतने हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांगली प्रेजेंट होते हैं, तो कभी कभी इसका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट जो है वाटर से भी बढ़ जाता है. ठीक है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. आप इसमें इतना ही लिखिएगा, ये कलरलेस है, पंजेंट ऑर्डर है, फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इसका लो है. उसके बाद ये उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है. ये हो गया. अब चलिए चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की तरह. केमिकल प्रॉपर्टी भी बहुत बढ़िया है. यहाँ पे आपको लिखना है उसका एक्वियस सॉल्यूशन. एक्वियस सॉल्यूशन इज वीकली बेसिक. जैसे उसको आप वाटर में डालते हो, एमोनिया प्लस वाटर, तो क्या फॉर्म होता है? NH4OH. और आपको पता है NH4OH इज अ वीक बेस. ये NaOH की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक बेस है. तो इसके 2 आयन होते हैं NH4+. यहाँ पे ऐसे आयोनिक फॉर्म में लिखा है, ये एरो है, ठीक है. एमोनिया विथ वाटर फॉर्म NH4OH और दैट इज द वीक बेस. एमोनिया ऑल्सो फॉर्म सोल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड. ये दोनों सोल्ट है. If you want to write the reaction, then write down like this. See here on screen. NH3 when react with HCl, it gives NH4Cl, ammonium chloride. जो कल हमने
एमोनिया की प्रिपरेशन में लिया था। 2 मोल्स ऑफ एमोनिया, बैलेंस आपको करना है, मुझे बैलेंसिंग पता है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। बाय रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिक एसिड इट गिव्स NH4 ट्वाइस SO4, ये 2 रिएक्शन है। अब आप 11th स्टैंडर्ड को याद करिए, जो सोल्ट वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का हो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, एसिडिक। तो ये दोनों जो सोल्ट है NH4Cl एंड NH4 ट्वाइस SO4, एमोनियम सल्फेट एंड एमोनियम क्लोराइड, बोथ आर एसिडिक सोल्ट। कैसे सोल्ट है, एसिडिक सोल्ट। अब यहाँ से NH4OH की प्रॉपर्टी आ जाती है, ये प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, 2 रिएक्शन आपको लिखने हैं, मैंने अभी जो लिखे थे वो। अब यहाँ से आप तीसरा पॉइंट बना लेना, ठीक है, ये थर्ड पॉइंट केमिकल प्रॉपर्टी का, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड पॉइंट, ठीक है। तो जब एमोनियम हाइड्रोक्साइड एज अ वीक बेस इट रिएक्ट विथ अ मेटल सॉल्ट लाइक जिंक सल्फेट एंड आयरन क्लोराइड, ठीक है। आपको ये अगर डिफिकल्ट लगे तो क्या होता है कि ammonium hydroxide as a weak base when react with a metal salts like zinc sulfate and iron chloride it form a metal hydroxide and respective salts of ammonium। ओके, जैसे कि मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पे देखिए सल्फेट है, नेगेटिव आयन, और यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्साइड है। तो ये हाइड्रोक्साइड जिंक के पास आ जाता है और सल्फेट जो एमोनिया के पास चला जाता है। तो ये नेगेटिव आयन का एक्सचेंज होता है, तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो पहले आप ऐसे लिखना कि मेरे पास कोई सोल्ट है जिंक सल्फेट, उसका मैं रिएक्शन करता हूँ NH4OH के साथ, तो मुझे क्या मिलता है, जिंक हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ से ही बैलेंस हो जाएगा कि मुझे 2 हाइड्रोक्साइड चाहिए, तो 2 मोल्स ऑफ एमोनियम हाइड्रोक्साइड आई रिक्वायर। ओके, तो सीधा हो जाएगा NH4 ट्वाइस SO4। रिएक्शन बहुत इजी है, मोलिकुलर फॉर्मूला आना चाहिए। ये भी हाइड्रोक्साइड ही है। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास है 2 मोल्स ऑफ आयन हाइड्रोक्साइड, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ Fe2O3 इंटू 3H2O। देखिए यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, तो आपके हो गए ये 6 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन, तो ये 3 और ये 3, 6 ऑक्सीजन, 2 आयन, तो ये 2 आयन, ठीक है। तो असल में ये आयन हाइड्रोक्साइड ही है। और आपको पता है माय डियर फ्रेंड्स कि आपने ये रिएक्शन जो है, आपको जब लेबोरेटरी में जिंक सल्फेट दिया जाता है, बोलते हैं कि आप Zn2+ बताओ, ये 12th में भी काम आने वाला है। अगर आपको एग्जाम में Zn2+ आयन दिया है और बोले कि मुझे उसकी कंफर्मेशन टेस्ट करके दिखाओ, तो कुछ नहीं करना है, उसमें आपके जो रैंक के ऊपर NH4OH पड़ा है वो डाल दो, वाइट प्रेसिपिटेशन आ जाए, समझ लो कि Zn2+ इज प्रेजेंट। वैसे आपको आयन दिया है, उसमें NH4OH डाल दो, अगर ब्राउन प्रेसिपिटेशन आ जाए तो ये ब्राउन प्रेसिपिटेशन जो है वो FeOH3 का है, आयन हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट ही है, क्लोरीन जो है वो NH4OH के साथ चला जाता है, OH जो है वो Fe के साथ चला जाता है। तो यहाँ पे 3 क्लोरीन, ठीक है, तो 3 क्लोरीन, तो ऐसे होगा FeCl3 प्लस NH4OH। ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस आपको करना है, तो आप, मैं जो स्क्रीन पे लिखता हूँ ना, ऐसे लिखिए FeOH3, ठीक है, FeOH3, इसको निकाल दीजिए, आप ऐसे लिखिए FeOH3। अब मुझे यहाँ पे 3 क्लोरीन है, तो 3 एमोनिया चाहिए, 3OH प्लस 3NH4Cl, हो गया ये बैलेंस, ये इजी रहेगा। तो ये पूरा निकाल के उसकी जगह पे आप ये लिख लीजिए FeCl3 प्लस 3NH4OH गिव्स FeOH3 प्लस 3NH4Cl, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आपको पता है कि एमोनिया जो है, एमोनिया इज अ वीक बेस, वाई? अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, लेविस बेस डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, ये शॉर्ट फॉर्मूला है, लबड़े, लेविस बेस डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। तो आप एमोनिया को देखिए, एमोनिया के पास लोन पेयर है, लोन पेयर जो है वो डोनेट करता है, तो इसका मतलब कि ये लेविस बेस है। इसकी अगली केमिकल प्रॉपर्टी है एमोनिया एक्ट्स एज अ लेविस बेस। अब वही लेविस बेस जो क्योंकि लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है,
तो यही लोन पेयर नाइट्रोजन डोनेट करता है। किसको डोनेट करता है? तो मेटालिक आयन। कैसे मेटालिक आयन? तो कॉपर 2+, काफ़ी मेटालिक आयन है, यहाँ पे 2 दिए हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसने डोनेट किया? तो थोड़ा मैं प्रैक्टिकली आपको बता देता हूँ कि वो लोन पेयर डोनेट करके नाइट्रोजन से लिंकेज होगा मेटल आयन, ठीक है। और जो एक कंपाउंड बनाएगा उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये जो चीज़ है वो भी आपको लेबोरेटरी में अगर कॉपर 2+ आयन और Ag+ आयन दिया गया है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे कि ये कॉपर 2+ है, जैसे कॉपर 2+ में ऐसे भी लिख सकता हूँ CuSO4, ठीक है। उसकी एमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे तो कॉपर के साथ याद रखना कि 4 एमोनिया ही कनेक्ट होंगे। ये आपको तब पता चलेगा कि why 4 here, that we will discuss in last chapter in book number 1, complex coordination and complex compounds, okay। तो ये अभी आपको याद रखना पड़ेगा 4 एमोनिया। तो ये कॉपर के साथ 4 एमोनिया जो है वो लोन पेयर डोनेट करके ये कंबाइन हो जाते हैं, देखिए नाइट्रोजन, और ये SO4 बाहर निकल जाता है। तो कॉपर के पास तो 2+ है, तो ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है ऐसे बनता है Cu NH3 4 टाइम इंटू SO4, यहाँ पे SO4 मिसिंग है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन रहेगा कि सर पॉजिटिव आयन तो इसको सेटिस्फाइड करने का, नेगेटिव आयन क्या है? ब्लू कलर CuSO4 का होता है, आपको पता है। इन 11th स्टैंडर्ड यू ऑलरेडी स्टडीड दैट CuSO4 इज अ ब्लू कलर्ड कंपाउंड। अब यहाँ पे ये आयन छोड़ दो, सीधा यहाँ पे आ जाओ AgCl, ठीक है। AgCl मतलब कि 2 आयन है, Ag+ और उसके साथ जो है 6 एमोनिया चाहिए, सॉरी 2 एमोनिया चाहिए। तो Ag++2 एमोनिया और ये क्लोरीन माइनस AgCl में। तो ये 2 एमोनिया Ag के साथ बाई डोनेटिंग कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एक लिंकेज बनता है, एक बॉन्ड बनता है। ये बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये NH3 ट्वाइस, इसके ऊपर आता है प्लस चार्ज, क्योंकि Ag का चार्ज है प्लस, तो उसको सेटिस्फाइड कौन करेगा? क्लोरीन। तो ये चार्ज निकल जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे न्यूट्रल लिखा है। यहाँ पे आप ऐसे निकाल के SO4 लिख सकते हो, SO4 2-, देन दिस 2+ न्यूट्रल, ओके। तो अब आपको लेबोरेटरी में कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्शन हुआ? तो आपको पता है कि कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है। जैसे ही आप उसमें एमोनिया पास करेंगे, यहाँ पे एरो कर देना, ठीक है। तो एमोनिया पास करेंगे तो ये जो ब्लू कलर है वो इतना डीप ब्लू कलर हो जाएगा कि आपको देखने में बहुत अच्छा है। जैसे मैं जो एरा कर रहा हूँ ना, इतना डीप ब्लू हो जाएगा, देखिए, ठीक है। तब समझ लेना कि ये कॉम्प्लेक्स बन गया। अब आपको पता है लेबोरेटरी में AgCl वाइट कलर का होता है, वाइट प्रेसिपिटेशन आपने लिए हैं इन द डिटेक्शन ऑफ क्लोरीन माइनस आयन। अब जो उसका कॉम्प्लेक्स बनता है AgCl के साथ, इसमें जब आप एमोनिया डालते हो, 2 एमोनिया, तो ये पूरा उसका वाइट कलर चला जाता है, वो पानी की तरह हो जाता है। इट लुक्स लाइक अ वाटर, सीधा चला जाता है, ठीक है। आप लैब में ट्राई करना, AgCl लेके उसमें एमोनिया पास करना, तो AgCl का वाइट कलर इमीडिएटली डिसअपियर, उसका मतलब कि उसमें ये कॉम्प्लेक्स बना है। तो ये एमोनिया जो है वो लैब में ये 2 आयन डिटेक्ट, काफ़ी आयन डिटेक्ट होते हैं उसमें, अकॉर्डिंग टू अवर प्रॉपर्टी दिस 2 आयन कैन बी डिटेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे सब केमिकल प्रॉपर्टी ख़त्म हो रही है, आप ध्यान से देखना। तो चलिए मैं यूजेस की तरफ चलता हूँ। यूजेस ऑफ एमोनिया। एमोनिया प्लांट सूरत और सूरत के आजू बाजू में जो GIDC एरिया है वहाँ पे बहुत ही रेफ्रिजरेंट प्लांट है। जैसे कि आउट सीज़न में काफ़ी फ्रूट्स आते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं। जब उसकी सीज़न चली जाती है तो 2 टाइम्स और 3 टाइम्स प्राइस लेके वो बेचते हैं। वो कूलिंग प्लांट, रेफ्रिजरेंट प्लांट, उसको हम एमोनिया प्लांट बोलते हैं। तो लिक्विड एमोनिया जो है वो रेफ्रिजरेंट के काम आता है, ओके। वाई? बिकॉज इट हैज़ अ लार्ज हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसकी जो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो कूलिंग एजेंट में काम आता है, ठीक है। एमोनिया ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस्ड नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। कौन कौन से? तो एमोनियम नाइट्रेट,
एमोनियम फॉस्फेट, एमोनियम सल्फेट, तीनों के फॉर्मूला में दे रहा हूँ. ये है एमोनियम नाइट्रेट NH4NO3. सेकंड वन इज द एमोनियम फॉस्फेट. फॉस्फेट मीन्स PO4 3 माइनस, तो ये आएगा NH4 थ्राइस PO4, एमोनियम फॉस्फेट. दूसरा है एमोनियम सल्फेट, तो SO4 2 माइनस, सो NH4 2 SO4. ये है एमोनियम नाइट्रेट, एमोनियम फॉस्फेट, एमोनियम सल्फेट. ठीक है, तो ये फर्टिलाइजर और ऑल्सो इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सब ऑर्गेनिक inorganic nitrogenous compounds, okay, and also useful in the preparation of nitric acid. Nitric acid is also called inorganic nitrogenous compound. ये HNO3 जो है, नाइट्रिक एसिड, HNO2 नाइट्रस एसिड, ये दोनों इनऑर्गेनिक कंपाउंड है. इनऑर्गेनिक, तो कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के काम, हालांकि ये तीनों भी इनऑर्गेनिक है, लेकिन ये मार्केट में फेमस है एज ए फर्टिलाइजर. सो हम दो यूजेस अलग अलग बना रहे हैं. ये तीनों इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, एमोनियम नाइट्रेट, एमोनियम फॉस्फेट, एमोनियम सल्फेट, बट दे आर स्पेशली यूज एज अ फर्टिलाइजर. और ये फर्टिलाइजर नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड दो अलग ले रहे हैं हम, HNO3 एंड HNO2, नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड. तो ये इसका यूजेस हुआ. ओके, thank you friends, thank you very much. Watch it carefully and write down in your fair note, and if you have any question then ask me. Okay.